Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Assalamu alaikum. This is Amjad Taki. I am fine. I hope you will be also fine. Most probably it will be our last lecture because from coming Monday your final exams are going to be held. We were studying about personal administration and major aspects of it, including recruitment, training, promotion, remuneration and retirement in different countries in comparative perspective. I would like to complete our topic personnel administration and its aspects today. We have studied about recruitment, training and promotion. Today we are going to talk about remuneration and retirement of civil servants in different countries. Let me start. Salary or remuneration for personnel. What is salary? Salary is not a remuneration for the actual work done, but it is given to enable the civil servant to maintain his status and make him attached to the organizational interests. The salary structure of the civil service deserves special attention because it determines the quality of personnel hired. Irrespective of the nature of political administrative system, payment to public servant is more influenced by economic factors. It is primarily dependent on the economic pressure and the collective bargaining strength of the various trade unions. Invariably, almost every country negotiates with the staff unions in order to find a compromise formula between the government and the public servant. पब्लिक सर्वेंट सैलरी को मोस्टली कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं. मोस्टली कंट्रीज़ में सैलरीज़ के मामला पर स्टाफ यूनियंस जो उस डिपार्टमेंट के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है वहाँ पर जो यूनियन मौजूद है, स्टाफ यूनियन से निगोशिएशन के बाद गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट्स में एक कंप्रोमाइज्ड फार्मूला या तयशुदा फार्मूला के तहत सैलरीज़ की जो है वो फिक्सेशन की जाती है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज, द मोस्टली highly paid civil servants were only from the USSR and Pakistani civil servants were among the least paid. कि जिन कंट्रीज़ में सिविल सर्वेंट्स को हाईली पेड किया जाता है उनमें USSR टॉप पर है, और जो लीस्ट पेड हैं जिनमें कम से कम सैलरी जो है वो पे की जाती है उसमें पाकिस्तान का भी शुमार ऐसी कंट्रीज़ में होता है. However, both the USA and the UK since the beginning of 1970 plan to reduce the spending on public service salaries. Privatization has been on the fast move both in the USA and the UK. 1970 से US और UK में जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं इनकी सैलरीज़ को रिड्यूस किए जाने पर काम किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है. इनका क्या प्लान है और किस तरह से ये स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विस सैलरीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, वो इनका फाइनल जो प्रोग्राम है वो प्राइवेटाइजेशन है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए जिनसे मैक्सिमम जो है वो आउटपुट लिया जाए और जो सैलरीज़ हैं, जो बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉइज़ को वो कम दिए जाएं. तो 1970 से यूएस और यूके में ये प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है या इसको प्रमोट किया जा रहा है. Salary for personnel in United Kingdom. In the United Kingdom, fixation of pay for civil servant is done by the appointment of a committee of the Treasury Department. Salary for civil servant since 1971 was fixed on the basis of Priestley formula. UK में जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है इसका काम है सैलरी फिक्सेशन वगैरह करना. ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करता है कि सिविल सर्वेंट्स की जो सैलरी है इसके लिए, इसकी फिक्सेशन के लिए एक कमेटी की फार्मूलेशन हो जाती है, जिससे जो कमेटी जो है ये एम्प्लॉइज़ की पे फिक्सेशन से रेलिवेंट जितनी भी इसकी रिकमेंडेशंस वगैरह हैं वो दे देते हैं ये कमेटी. इट इज़ बेस्ड ऑन गवर्नमेंट इनकम पॉलिसीज़ एंड
by a fair comparison with outside world and private sector। कमेटी जो है अभी प्रेस्टली फार्मूला के तहत सिविल सर्वेंट्स जो यूके में हैं उनकी सैलरीज जो है वो बनाई जाती है, फिक्सेशन उनकी की जाती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, जो इनकी सैलरीज है वो उस कंट्री के जो इनकम है उसकी कंट्री की इनकम पॉलिसीज़ और जो उनको मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरे जो इसके कंपैरेटिव कंट्रीज़ हैं जिस तरह यूके का कंपैरेटिव यूएस, रशिया, फ्रांस, वहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स हैं और यूके के सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी सैलरीज़ को कंपेयर करते हुए सैलरी फिक्सेशन की जाती है। तो ये इनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम है कि वो कोई कमीशन या कमेटी की फॉर्मेशन करे जो ये सब काम करे। 1980 से पहले यूके में सिविल सर्विस पे रिसर्च यूनिट था, जो 1980s में इसको अबॉलिश किया गया और इसको रिप्लेस किया गया बाय मेगा कमेटी ऑफ 1981 एंड 82 कि सिविल सर्विस पे रिसर्च यूनिट को रिप्लेस किया एक कमेटी ने, जिसको मेगा कमेटी के नाम से जाना जाता है। उसने जो अपनी 2 रिकमेंडेशंस दी मेगा कमेटी ने, उनमें से फर्स्ट थी अ बेसिस मिनिमम डिसाइडेड इन अ नॉर्मल वे। अब बेसिस मिनिमम या इसमें बेसिक पे की हम बात कर सकते हैं, मिनिमम पे जो है वो नॉर्मल डिसाइड की जाए। हाउसिंग कॉस्ट एज अ सप्लीमेंट्री टू द पे स्केल, के पे स्केल में जो हाउसिंग कॉस्ट है या मतलब जिनके ये हाउस रेंट, इसमें बात करने की जो एक प्रॉपर जो है हाउस रेंट जो है उनके पे स्केल में ऐड किया जाए। द क्राइटेरियन फॉर फिक्सेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर इन मोर सिंपल इन द यूके एंड मोर कम्प्लेक्स दैन इन पाकिस्तान। यूके में जो पे स्ट्रक्चर है वो सिंपल है एज़ कम्पेयर टू रशिया एंड फ्रांस, क्योंकि रशिया में जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो रिजिड है, जबकि यूके का जो है वो ज़रा सिंपल है। नेक्स्ट, सैलरी फॉर पर्सनल इन फ्रांस, कि फ्रांस में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी तय करने का क्या तरीक़ाकार है, किस तरह उनकी सैलरीज जो हैं वो तय की जाती हैं, फिक्सेशन की जाती है। फ्रांस हैज़ अ रिजिड फार्मूला फॉर सैलरी फिक्सेशन एंड इट यूजेस फ्लेक्सिबल अप्रोच। फ्रांस में फार्मूला जो है सैलरी फिक्सेशन का वो रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज़ करते हैं। जिस तरह यूएस में हम आगे बात करेंगे टेबल में कि यूएस में जिस तरह ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है, कि उसमें ये जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है ये देखता है कि किस कंट्री में किस ग्रेड या स्केल का ऑफिसर कितनी सैलरी जो है वो विदड्रॉ कर रहा है। तो इसी तरह इस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए फ्रांस में जो सैलरी फिक्सेशन है वो मुकम्मल की जाती है। Pay fixation in recent times is approached managerially. The federal merit pay arrangements for employees in grade GS 13 to 15 are based on the employee's performance rating and his other levels of pay। कि फ्रांस में जो ग्रेड्स 13 से 15 के जो एम्प्लॉइज़ हैं, सिविल सर्वेंट्स उनके एम्प्लॉइज़ हैं, पब्लिक एम्प्लॉइज़ जो हैं उनके पब्लिक सर्वेंट्स, उनका जो फिक्सेशन है, उनकी पे जो है उनके परफॉर्मेंस बेस, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए तय की जाती है। द अदर कंसिडरेशन आर नेशनल इनकम, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कंपेयरिंग पे विद प्राइवेट सेक्टर, नेचर ऑफ टास्क एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू द पब्लिक। के जो 13 से 15 स्केल के जो ग्रेड्स के जो एम्प्लॉइज़ हैं फ्रांस के, उनकी जो सैलरी है, पे है, वो उनकी परफॉर्मेंस बेस पर फिक्स की जाती है। इसके अलावा नेशनल इनकम, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, कंपेयरिंग पे विद प्राइवेट सेक्टर,
इन 3 चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए फ्रांस में सैलरी जो है वो पे फिक्सेशन की जाती है। इसके अलावा फ्रांस के जो पे फिक्सेशन है, सिस्टम ऑफ पे फिक्सेशन है फ्रांस में, उसको जनरल ग्रिड बोलते हैं, जो कि 1948 में इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें हर पोस्ट को एक स्पेसिफिक फिक्स्ड नंबर अलाट किया गया, जिसे इंडाइसिस बोलते हैं। कि 1948 में फ्रांस में जनरल ग्रिड फॉर सिस्टम ऑफ पे फिक्सेशन ऑफ सिविल सर्वेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें हर पोस्ट को एक स्पेसिफिक फिक्स्ड नंबर जो है वो अलाट किया जाता रहा, जिसे इंडाइसिस बोलते हैं। इन्हीं नंबर्स की बेस पर जो सैलरीज़ हैं वो कैलकुलेट की जाती रहीं। फ्रांस में इसके अलावा एक और क्या सिस्टम था, जो हाईली सैलरी इज़ जनरली 11th टाइम्स द लोवेस्ट, कि वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम सैलरीज जो थी वो फिक्स थी, कि मैक्सिमम सैलरी ये होगी, मिनिमम ये होगी। मिनिमम सैलरी जो है उसको अगर मल्टीप्लाई करें 11 से, जो उसका प्रोडक्ट आता है, यानी कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट की सैलरी $100 है तो उसका लोअर रैंक पर है, वो कम से कम सैलरी उसकी $100 है। जो मैक्सिमम सैलरी फ्रांस में बनेगी किसी भी डिपार्टमेंट के सिविल सर्वेंट की, एम्प्लॉय की, वो 100 मल्टीप्लाई बाय 11, जो मैक्सिमम सैलरी है वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। ये फ्रांस में ऐसा था। इसका जो इस सिस्टम का जो मेजर फॉल्ट था, जनरल ग्रिड सिस्टम का जो मेजर फॉल्ट था, उसमें ये था कि ग्रिड पर जो है अलाउंसेस जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि अलाउंसेस जो हैं वो फ्लैट रेट पर कैलकुलेट होते हैं। तो इसकी वजह से जो ये ग्रिड सिस्टम है फ्रांस में वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। नेक्स्ट इसमें एक टेबल है जिसमें आप देखें ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनके पर्सनल सिस्टम को कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में इधर इनको कंपेयर किया गया है कि किस कंट्री में कौन सा डिपार्टमेंट है जो पे कंट्रोल करता है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो रिकमेंडेशन देता है, किन प्रिंसिपल्स या इंस्ट्रक्शंस पर पे जो है वो सिविल सर्वेंट की वो बनाई जाती है, और नेचर ऑफ पे फिक्सेशन क्या है, किस कंट्री में नेचर ऑफ पे फिक्सेशन क्या है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कि यूएसए में जो है वो डील कौन कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट पे कंट्रोल करता है, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। यूके में ट्रेजरी एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, फ्रांस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूएसएसआर में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसी तरह नेक्स्ट पे रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, नेक्स्ट प्रिंसिपल अडॉप्टेड हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, एंड फाइनली नेचर ऑफ पे फिक्सेशन इसमें मेंशन की गई है कि यूएस में जो है वो नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड पे फिक्सेशन है, जबकि यूके में सिंपल है एंड मार्चिंग टुवर्ड्स मैनेजरियल अप्रोच, फ्रांस में रिजिड, पाकिस्तान में फ्लेक्सिबल और यूएसएसआर में पॉलिटिकल डिसीजंस के पॉलिटिकली डिसीजंस लिए जाते हैं। ये था डिफरेंट कंट्रीज़ का पर्सनल सिस्टम में इनकी जो सैलरीज़ है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, बात की है। अभी नेक्स्ट जो है इसमें आ जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। 5th जो फाइनल इसका एस्पेक्ट है पर्सनल सिस्टम का, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसमें रिटायरमेंट की आप टाइप्स को कह सकते हैं या इसमें कंडीशंस देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस है। 3 कंडीशंस यहाँ पे बयान की हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी बेसिस पर रिटायरमेंट जो है वो अक्कर होती है। नंबर 1, फिक्स टर्म ऑफ ईयर्स और ऑन अटेनिंग मैक्सिमम एज फॉर रिटायरमेंट, कि किसी भी पोजीशन के लिए जो फिक्स टर्म है उसकी लिमिट एक बना दी गई है कि इतने ईयर्स है वो, या जो वो उधर सिविल सर्वेंट है उसकी मैक्सिमम एज वो डिसाइड कर दी जाए कि इस एज पर जो एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो जाएगा। एट द विल ऑफ द अपॉइंटिंग ऑफिसर, जिस ऑफिसर ने इनको अपॉइंट किया है उसकी विल पर भी हो सकता है। नंबर 3, फॉर लाइफ टाइम, यानी कि इसमें रिटायरमेंट वाला कोई सिस्टम ही नहीं है कि यानी कि लाइफ टाइम उसकी होगी
जब तक वो ज़िंदा है तब तक उसकी रिटायरमेंट नहीं होगी, उसकी सर्विस जारी है। ऑलमोस्ट इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन बिकम अ लीगल राइट एंड कंट्रीज आर डिफरेंट only in fixing the age of retirement and other benefits that are associated with retirement। के डिफरेंट कंट्रीज़ में रिटायरमेंट जो है ये एक लीगल राइट है इस एम्प्लॉय का। तो ये रिटायरमेंट एज जो है वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, कि उस कंट्री का जो वहाँ पर उस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हुए या उनकी जो एक एवरेज लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है उस कंट्री में, उसको देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए ये, या वहाँ की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को देखते हुए भी जो रिटायरमेंट एज है या इनकी कंडीशंस हैं वो फाइनल की जाती हैं। कि अगर फ्रांस में देखें तो रिटायरमेंट एज 60 इयर्स है, यूएस में 65, यूके में 60, यूएसएसआर में 60, पाकिस्तान में 60, इंडिया में 58। तो ये जो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं। ये जो डिफरेंस है ये इनका क्या है, ये इनकी एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से है कि किसी कंट्री में अगर वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो उनकी रिटायरमेंट एज है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दोज कंट्रीज़ हु हैव लेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो दूसरा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जिन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है उनके जो रिटायरमेंट एज है उनके पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉइज़ की वो कम होगी। जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम है उनकी जो एज होगी वो ज़्यादा होगी। रिसेंटली जिस तरह अभी पाकिस्तान में पंजाब के जो एम्प्लॉइज़ हैं इनके लिए एक डिस्कशन जारी है, एक कमेटी, 2 कमेटी इनमें तश्कील दी जा चुकी हैं जो इन्होंने फाइनल करना है कि अभी एक पंजाब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी रिटायरमेंट एज जो अभी मौजूदा 60 इयर्स है उसको कम करके 55 इयर्स पर ले जाए। इनकी क्या वजह है, एक तो फिनेंशियली जो बर्डन है गवर्नमेंट पर वो कम होगा, दूसरा इसमें इस तरह पॉपुलेशन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, पंजाब की बहुत ज़्यादा है बाकी सूबों की निस्बत, तो इसमें ये होगा कि जो यंग जनरेशन होगी, यंग ब्लड जो होगा उनको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि पहले जो एम्प्लॉई है वो 60 इयर्स पर जाकर रिटायर हो रहा है, तब जब वो 55 पर रिटायर होगा तो जो पोजीशन है, सीट्स हैं वो वैकेंट होंगी। तो इसी तरह ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करता है। स्पेशली अगर देखा जाए पाकिस्तान, यूएस या इंडिया में, तो जो कोर्ट्स हैं, यूएसए की जो कोर्ट है उसका जो यूएसए में फेडरल और जो स्टेट की कोर्ट्स हैं वहाँ पर रिटायरमेंट एज जो है वो 70 है। इन केस ऑफ पाकिस्तान है इंडिया, पाकिस्तान या इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 है, जबकि जो हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 है। जबकि अदर डिपार्टमेंट्स में या ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या पब्लिक के सर्वेंट्स हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 60 है। नेक्स्ट फर्दर इसमें फ्रांस, यूके, इंडिया और यूएसएसआर में रिटायरमेंट बेनिफिट्स या किस तरह जो किन कंडीशंस पर एम्प्लॉइज़ जो हैं वो रिटायर होते हैं और उनकी पेंशन किस तरह बनती है। फ्रांस में देखें, पेंशन कैलकुलेटेड एज अ पोर्शन ऑफ द लास्ट सैलरी रिसीव्ड। दोज हु वर्क फॉर 30 ईयर्स विल रिसीव हाफ द सैलरी रिसीव्ड। के ये उनकी जो लास्ट सैलरी वो रिसीव करते हैं एम्प्लॉइज़, उसकी बेस पर पेंशन जो है वो कैलकुलेट की जाती है। कि जो एम्प्लॉइज़ 30 ईयर्स जो है वो सर्व करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के में, वो हाफ सैलरी जो है उन्होंने लास्ट जो रिसीव की होगी उसका 50% वो एज ए पेंशन रिसीव करेंगे। दोज हु हैव स्पेंट 40 ईयर्स इन सर्विस विल रिसीव 2/3 ऑफ द सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। के जिन्होंने 40 ईयर सर्विस की है वो अपनी लास्ट सैलरी का 2/3 रिसीव करेंगे। तो क्वालिफाई फॉर पेंशन अ मिनिमम ऑफ 15 ईयर्स सर्विस मस्ट हैव बीन स्पेंट। के पेंशन के लिए तब कोई एम्प्लॉई एलिजिबल होगा जब वो मिनिमम 15 ईयर जो है वो उस डिपार्टमेंट में सर्व करेगा। पेंशन अमाउंट इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज़ अ पे इंक्रीज इन द सिविल सर्विस। नेक्स्ट, द विडो ऑफ पेंशनर विल रिसीव हाफ द पेंशन। कि विडो जो है वो हाफ पेंशन रिसीव करेगी। चिल्ड्रन ऑफ द डिमाइज्ड पेंशनर विल रिसीव 10% ऑफ द पेंशन अमाउंट टिल दे अटेन
21 ईयर्स ऑफ एज, कि अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसके जो बच्चे हैं, जब तक उनकी एज 21 ईयर नहीं हो जाती, वो 10% उस पेंशन का रिसीव करते रहेंगे। नेक्स्ट है यूके में क्या है, यूके में जो है वो नॉन स्टेचुरी सुपर एनुएशन एक्ट है, जिसमें देर इज़ पॉसिबल टू मेक एनी चेंज पेंशन विदाउट फर्दर लेजिस्लेशन। कि वहाँ पर फर्दर लेजिस्लेशन से अपना जो डिपार्टमेंट है वो इसके पेंशन को जो रूल्स हैं या उसकी किस तरह पेंशन बनती है या किन शराइत जो उनकी शराइत हैं वो चेंज कर सकते हैं। 10 ईयर्स मिनिमम सर्विस इज़ रिक्वायर्ड टू रिसीव पेंशन। वहाँ पर फ्रांस में 15 ईयर सर्विस था, ज़रूरी था कि तब आप पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं सिविल सर्वेंट, जबकि यूके में जो है वो 10 ईयर्स है। पाकिस्तान में अगर देखें 10 ईयर्स है, लेकिन 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स रेयर केसेस हैं मे बी कि वो अगर उनको रिटायरमेंट वगैरह मिल जाए। वैसे जो पाकिस्तान में है वो 25 ईयर्स ऑफ सर्विस है, जनरली 25 ईयर्स है। अ सिविल सर्वेंट इज़ एलिजिबल टू रिसीव एन एनुअल पेंशन ऑफ 1/8 ऑफ हिज एवरेज सैलरी ओवर द लास्ट 3 ईयर्स ऑफ सर्विस। ये सिविल सर्वेंट जो है वो एनुअल पेंशन है वो 1/8 ऑफ हिज एवरेज सैलरी ओवर द लास्ट 3 ईयर, आखिरी 3 सालों में जो उसने एवरेज सैलरी जो बनेगी उसका 1/8 जो है वो एज ए एनुअल पेंशन रिसीव करेंगे यूके में। टेम्परेरी सिविल सर्वेंट्स हु हैव सर्व्ड 5 ईयर्स और मोर आर एलिजिबल टू रिसीव अ लम सम क्वांटिटी। कि जो टेम्परेरी हैं यानी कि परमानेंट नहीं है, उनके लिए 5 ईयर है। नो कंट्रीब्यूशन इज़ मेड बाय द सिविल सर्वेंट टुवर्ड्स हिज पेंशन। कि सिविल सर्वेंट्स के लिए पेंशन में कोई इस तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, यानी कि जो टेम्परेरी सिविल सर्वेंट्स होंगे उनके लिए पेंशन वाला जो एक राइट है, जो बेनिफिट है, वो नहीं होता। विडोज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ द पेंशनर विल गेट पेंशनरी थ्रू कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स। के विडो और चिल्ड्रन के लिए जो एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट्स जिस तरह आती हैं उनके मुताबिक जो डिफरेंट वो स्कीम्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराते हैं। विडोज़ और जो इसके चिल्ड्रन हैं उसके किसी भी पेंशनर के, वो उनसे उन स्कीम्स के हिसाब से जो है बेनिफिट ले सकते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में पेंशन इज़ रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ क्वालिफाइड सर्विस रेंडर्ड बाय द सिविल सर्वेंट। पेंशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज ऑफ रेम्यूनरेशन ड्राइव बाय हिम ड्यूरिंग 10 months immediately preceding the date of retirement. Full pension is admissible to a civil servant who retires after completing 33 years of qualifying service. Number 4 है proportionate pension is admissible after completing 10 years of qualifying service. And number 5, family pension is payable to the family retirement to the family of an employee on his death in service or after retirement on monthly expension. It varies on the it is based on the length of his service of a pensioner or the demise. Pension will automatically increase after the pay increase of the civil servant. जिस तरह बजट वगैरह में पेंशन बढ़ती है वही बात है। यूएसएसआर में क्या है कि यूएसएसआर में पेंशन बेनिफिट कवर्ड नॉट ओनली द सिविल सर्वेंट बट द एंटायर वर्किंग फोर्स ऑफ द यूएसएसआर के। सिर्फ सिविल सर्वेंट्स ही नहीं, यूएसएसआर में जितने भी वर्किंग फोर्सेज हैं, जितने भी इसमें पर्सनल है या जितने भी मतलब एम्प्लॉइज़ हैं, लोग हैं, वो इसका ये पेंशन के बेनिफिट हैं वो रिसीव करते हैं। फॉर सिविल सर्वेंट द पेंशन बेनिफिट्स वर वेरी साउंड। जबकि सिविल सर्वेंट के लिए इसका जो पेंशन के बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर यूएसएसआर में ऑलरेडी मैंने बात की कि वहाँ पर जो सैलरीज़ हैं वो हाईली मतलब पेड हैं, हाईली पे की जाती है सिविल सर्वेंट्स को एज़ कम्पेयर टू द राउंड ऑफ द वर्ल्ड। इक्वल पेंशन इज़ गिवन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों के लिए सेम है। कंपलसरी 30 ईयर्स ऑफ सर्विस इज़ रिक्वायर्ड फॉर पेंशन बेनिफिट। पाकिस्तान में 25 था, इंडिया में 33 और यूएसएसआर में 30 ईयर्स सर्विस जो है वो कंपलसरी है। पेंशन वाज यूजुअली डिटरमाइंड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन वेरियस क्राइटेरिया। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी ये पेंशन जो है वो वेरी करती है। दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर। Be prepared for exam
तो अगर इस लेक्चर में आपको कोई किसी किस्म का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, क्यूरीज है, आंसर आपने कोई क्वेश्चन आपने कोई करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।